Yes. So we were there doing our motion NCRT back exercises, and today we are going to finish this back exercises, right? तो फटाक से कर लेते हैं जल्दी जल्दी. So my nine, let's get started. चलो. A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. Okay. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. So find how far the train will go before it is brought to rest. Yes. अब देखो हमने करना है. What is given? First of all is given the initial velocity which is 90 kilometers. So हम इसको पहले ही अपने meters per hour में बदल लेते हैं, meters per second में बदल लेते हैं, right? 60 into 60. And 25 आ गया. 25 meter per second. Is up to 5. Yes, B is going to be 0. Yes. So what is acceleration this? Minus 5, right? So what we calculate क्या करना है बेटा? Calculate S, right? अब कितना बोले use? कौन A is B से correct. आगे बोले तो एक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Third question is this one minus is equal to S, right? So R20 minus 20 is equal to 2 into मैम 9. आपकी आवाज आ रही है. Okay, measure है. Speed to 3 होगी ना. Okay, so no issues. There is some lag in the net, so don't worry. Okay, minus into 0.5. Right? It will be 2. So 6, 8, 8, 2. Then a trolley and plane has an acceleration of 6 square. Only LC. After the speed, we have 2 is equal to right? We have 0%. B हमें क्या है? Yes. Okay, so now we have to calculate V. So we will use our first equation of motion, which is V is equal to U plus 80. Yes, it is U plus 80. U plus 80. So what will be the answer, beta? Yes, tell me. 0.06 meter per second. Yes, it will be 0.06 meter per second. Yes, so this is the answer. Now, the next. Next one is also very simpler. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? First of all, Parth, you tell me what is given in this case. Per second square. Then what is given? Next sign is given to be given. We have to calculate the no. But again the B. We have to calculate this. Yeah, calculate the distance. Now, Prithvi, you tell me which one is better. Oh, let us also answer. I know. Prithvi, tell me which formula, which equation will you use? Yes. Ma'am, U equals half A. Hanji, Prithvi, are you there, beta? No, he's not there. So Anshu will tell me S is equal to UT. U plus half 80 square. Yes, it is half 80 square. So U तो हमारा 0 ही है. Okay. So half into भव्य आपने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी बेटा. हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया उसको बेटा. हाफ into 4 into 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100. तो it will be 200 meters. Yes भव्य. Okay. Right. Chaliye. Now the next question. Okay, the next question it will be Ashi, आप बताओगे बेटा इसमें what is given and what we need to find out. Okay, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction,
what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? Yes beta, क्या क्या given है and what I need to find out. मैम इसमें वेलोसिटी हमें 5 मीटर दे रखी है. ठीक है जी, तो that will form RU. यस मैम. Okay, U is equal to 5 meter per second. Yes. Okay, then एंड एक्सेलरेशन दे रखी है हमें 10 मीटर. okay, fine. ठीक है, 10 meter per second. And what we need to calculate बेटा? हमें कैलकुलेट क्या करना है? मैंने ना दो किया है क्वेश्चन में. Can you tell me सिग्निफिकेंस दोस टू? तो इस क्वेश्चन में क्या लिया? कि मैम जब वो ऊपर जाती है तब मैम वो इतने मीटर पर सेकंड स्पीड से जाती है और जब वो नीचे आती है तब इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है. मैम जब हम ऊपर फेंकते हैं तब मैम वो धीरे ऊपर जाते जाते धीरे हो जाती है और जब वो नीचे आती है तब वो धीरे से और ज्यादा मतलब हो जाती है स्पीड उसकी. Okay, Anshu, can you tell me the significance of these two words, upward and downward? Yes. May I tell? Yeah, sure. बताओ upward और downward का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में देने का? मैम अपर डायरेक्शन का मतलब है कि जो उसकी हाइट की जो ऊपर आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फिर ऊपर जाके वो एकदम से रुक जाता है, एक पोजीशन पे रेस्ट आता है, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. फिर जब वो फिर से नीचे आ जाएगा तब वो जो ऊपर की जो रेस्ट था वो हमारा 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और जो नीचे आने की स्पीड हो जाएगी वो हमारी फाइनल हो जाएगी. ओके, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो कि इन्होंने हमें ना एक स्टोन का डायरेक्शन बताया और उसका एक्सेलरेशन ऑफ मोशन भी बताया. उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है बेटा, जो आपका ए आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा. राइट, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना. आपने पत्थर को ऊपर फेंका, मोशन इज अपवर्ड्स, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है. डायरेक्शन क्या हुई? ऑपोजिट हुई कि नहीं हुई? यस. तो मुझे ये बताओ, हम यहाँ पे v0 लेंगे? यस. ये आपको जैसे भव्य ने हमें बताया कि मैम वो सबसे हाइट पे पहुंच के स्टॉप फॉर अ मोमेंट, हमेशा सबसे ऊपर जाके जो v हो जाएगी वो 0 हो जाती है, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग और फिर नीचे आके फिर 0 हो जाती है. राइट. सो नाउ टेल मी, हमें हाइट निकालने का मतलब है आपने उस स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो वो वर्टिकल जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हम उसको हाइट बोल देते हैं. तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बेटा? 2a to v square minus u square. Yes, so it will be v square minus u square is equal to 2as. Now v is 0, तो ये हो गया minus 25 is equal to 2 into minus 10 into s. Okay, so this is cancelling off. This will be 2, this will be 5. So 5 by 4. Yes. 1.2. Yes. So 1.2 5. Okay. Yes. Now, पार्थ बेटा आप बताओ मुझे, हम टाइम कैसे कैलकुलेट करें बेटा? टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें बेटे? कर लेते हैं. है ना. तो आपका v है वो क्या है? 0. ये हो जाएगा -5. राइट. एक्चुअली क्या है? -2t. राइट. तो ये कैंसिल. तो टाइम इज हाफ सेकंड. यस, 0.5. Problem in this. Okay. चलिए. Athlete completes 1 round of diameter. चलो आप काम चला लो. राइट. ओके. ये इसने 2 पाई r है, तो किसने कर रहा है ये? या हम इसका उल्टा कहते हैं कि 40 2 पाई. राइट. तो
Yes, यहाँ कैसे 2 minutes 20 seconds 140 40 seconds तो 2 hour over 40 तो इसको सॉल्व करेंगे, it is 7 pi r। अब इसके पीछे मेरा रीजन मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, ठीक है, हमने है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नंबर फ्रॉम निकालना है, तो नंबर फ्रॉम राउंड का डिस्टेंस था, दैट वाज 2 pi r, pi r तो इसका मतलब अगर 1 2 हो जाएगा, अगर ये इनिशियल फाइनल पॉइंट। अब मुझे पाथ डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, इक्वल टू 200 एंड 200 मीटर्स। क्या ये सबको समझ आ रहा है, ये बनाऊं बेटा? डिस्टेंस निकाल लिया मैंने पॉइंट में। अच्छा, ये पॉइंट में डिस्टेंस आपका पॉइंट में कैसे 7 पॉइंटों में आ रहा है। देखो आप 7 into 20 to 7, एक मिनट बेटा, it cancel this not to be 200 why in point, yes No ma'am, now it will come in 2200 102 एक बार रिपीट करना, 199.11 how I can tell you in front, 2199.11 meter. नहीं but why everything is being cut off, it's 7 pi r, जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था that was 7 pi r, pi is 22/7 and r is half of this 200, ये देखो I have done over here, ये रहा, तुमने क्या किया है बेटा, आप जो मुझे आपने फॉर्मूला लगाया वही लगाया मैंने भी। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं अभी देखती हूँ क्या किया है। यस पार्थ, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। मैम वन टाइम मोर। मैम आगे आंसर सॉरी मैम थोड़ा पॉइंट मिस्टेक हो गई मल्टीप्लाई करने में। ठीक है पार्थ, मैं समझा देती हूँ बेटा। देखो एक एथलीट है बेटा, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, ठीक है, वो एक राउंड को रन करने के लिए 40 सेकेंड्स लगा रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है दैट इज 200 मीटर्स, ठीक है बेटा, क्लियर इतना। अब एक डिस्टेंस मतलब वो बाहर बाउंड्री पे भाग रहा है तो हम क्या निकालेंगे, 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस। इसका क्या मतलब बना कि 40 सेकेंड्स में वो एक सर्कमफ्रेंस भाग रहा है, तो एक सेकेंड में कितना हुआ, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 40, राइट। फिर हमने ये निकाला 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स होते हैं 120 सेकेंड्स प्लस 20 कितने हो गए 140 सेकेंड्स। उसके अंदर उसने जो भागा दैट इज 7 पाई आर, ये डिस्टेंस आ गया। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया वी गॉट 2200 मीटर्स, ये तो आया डिस्टेंस ट्रेवल। अब हमने कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय सिंगल डिस्टेंस, सिंगल डिस्टेंस क्या था सर्कमफ्रेंस, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल, 7/2 मतलब 3.5 राउंड्स लगा रहा है वो। 3.5 राउंड्स का क्या मतलब है बेटा, सपोज वो ए से स्टार्ट हुआ, राइट, ये आया उसका फर्स्ट राउंड, राइट 1, फिर दोबारा गया, फिर आया सेकेंड राउंड, फिर दोबारा गया, फिर आया थर्ड राउंड, राइट, फिर आया, लेकिन यहाँ आके इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल path between A and B, and that is the diameter. I hope now everyone is clear. यस मैम। Okay, बेटा, okay बेटा, चलो। Joseph joined A to the other illustrated near road in 2 minutes seconds and lost 100 meter point C. Okay, 1 minute. देखो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज और जोसेफ को इसमें जोइन करने का 2 मिनट्स, देन वो यहाँ से चलता है B और C तक जाएगा और यहाँ और आप इसको लगता है 1 मिनट, तो यू हैव वेलोसिटी एरो स्पीड निकालते हैं A to B और फिर B to C, इन दोनों को फिर ऐड करना है। सबसे पहले ये अपने बेटा, तो इसका ओवर टाइम क्या है 1 राइट, स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, राइट। अब BC में क्या है 100 over 60, राइट, 5, सो इट इज राइट। अब ये तो था BC की तरफ, लेकिन ये A से C, राइट, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो ऐड कर देंगे A to C, A to C के क्या करेगा, इट विल बी 11, ठीक है, ये आपकी स्पीड है टोटल, ठीक हो गया A से C तक, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं वेलोसिटी में आएगा मतलब मीटर माइनस 5/3 क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है। ओके बेटा, ये बात क्लियर हुई है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये देखो बेटा, इसमें ये अराउंड एंड जॉ 100 मीटर बैक, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगी, एंड वी विल सो 2 minus 3 to be 5 मीटर. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. ओके बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाक से करें उसको, देखते हैं हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब्दुल ड्राइविंग टू स्कूल, यहाँ पे आएगा, सॉरी ये एवरेज स्पीड और 20 किलोमीटर पर आवर, सेम रूट पे उसको 30 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज हो गया as accelerate p1 plus p2 by 2 plus 30 over, it will be 25 kilometer per hour. Okay जी. Next question. A motor accelerates in a straight at a rate of 3 meters per second. How far does the road travel during this time? So I think everything is given. U is given to be 0 per second. A is given 3 meter per second square. Right? Then P. And we have calculated, right? So which formula we can use? S Plus half is square. Half into 60. Yes, cutting करोगे, it will be 32, 96. चलिए. So now it's question number. Yes, ma'am. A driver of a car traveling at 52 kilometers per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. Okay, the car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 kilometers per hour in another car applies his brakes slowly, okay, and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? ओके, तो व्हाट वी से, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. आप ग्राफ पेपर पे आई थिंक आप खुद कर सकते हो उसको प्लॉट. यस. Yes, ma'am. पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कार 1 का. सो इट इज कार 1 एंड कार 2, राइट? तो कार 1 के केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज गिवन टू बी 52,000 over 60 into 60, right? अरे पॉइंट में आएगी 14.44. हाँ चलो हम इसको ना फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं बेटा. We will leave it over in fraction. So it is 26, I think 13 by 9, right? Yes, ma'am. ठीक है, तो we'll leave it in fraction form. Still I'm writing kilometer, okay? Okay, so much. Now V is right, is not so like the time में P is given to be like right? First we have right? V is equal to 80. Excuse me, ma'am. V 30 है मेरा. हाँ जी हाँ, good. Yeah, opening this up, right? O D is our student. Okay, so S equal to V plus H minus U into H, right? Okay, we will do calculations. ये जो square है, this is half U per day, right? Half U by 5. If I take on the 325 over this, yes, आपका स्प्लिट करें. So I should know बेटा कितना U है. Yes, next week. ये भी 5 है. ठीक है, साथ में एक फाइंड करें. 2D plus half minus 2D into half. Do you understand it? Right? About this will be I think 25. 986. Sorry. Right? Yes. So now this is a kind of distance time graph or ABC, 3 objects हैं. You have to study this graph and answer the following questions. Are all three जो ये objects हैं, they are moving at the same point on the road? क्या तीनों same point पे जा रहे हैं? No, No, ma'am. first of all, नहीं. First question is who is traveling the fastest? जिसका A. No, it will not be A.
इट विल बी बी ओनली बेटा, ये देखो फास्टेस्ट पूछा है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं। मैं अपना थोड़ा ग्राफ गलत बनाया है। क्या चीज बेटा? मैम हाँ जी, मैम फिर सी का कैसे करेंगे? मैम BCA है। बी बी यहाँ पे सी CA नहीं बेटा, वो एक्चुअली जहां से मार्किंग है ना वो ठीक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐसे मार्किंग की है ना, जो आपका 4 और 8 के बीच में है वो सी है बेटा, देखो जरा 4 और 8 के बीच में सी ओनली। मैम वो A है। यस मैम। नहीं बच्चा, 4 और 0 और 4 के बीच में है। ठीक है ठीक है, 4 और ठीक है, यहाँ पे सी करते हैं, ये लो जी, ठीक है बेटा, लो जी। यहाँ पे वी विल राइट सी और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। तो बी सबसे ज्यादा तेज चल रहा है ना बेटा, क्योंकि आप देखो ना कम टाइम में इट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये, टाइमिंग भी तो कम है ना, जितना आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा Yes, उतनी ma'am. वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, तो बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। नेक्स्ट बेटा, और ये जो है क्या तीनों एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं? सिंगल No, पॉइंट ma'am. पे तो क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं ये, राइट? कर रहे हैं क्या No, ma'am. अंशु? आपको मैम A मतलब नहीं करता, B और C तो कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वो जो है तीनों के तीनों नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट क्रॉसिंग द पॉइंट एट वन सेम पॉइंट। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी, सो नो। अब बताओ हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, तो सी कितनी दूर गया है बेटा? ये तो बेटा एक्चुअली क्या है, अभी आपको यहाँ पे जो चीज मतलब मैम रीडिंग्स, 10। यस ग्राफ पेपर नहीं है ना, तो आई जस्ट टेल यू, आप इसको मैच कर लेना, आपकी बुक में ये गिवन है, दिस इज 6.5 किलोमीटर्स, ठीक है। इस पॉइंट पे जब वो बी उससे चला गया तो क्या है, वाई एक्सिस पे आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। देन है हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, तो उस केस में है 5 किलोमीटर्स। ओके, तो आप इसको एक बार ग्राफ से चेक कर लेना, अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट Excuse me, क्वेश्चन। मैम। हाँ जी बेटा। मैम लेकिन B और A की इंटरसेक्शन तो 9 या 10 किलोमीटर पे हो रही है। बेटा कह रही हूँ ना, ये वाला उसने बताया जब बी ए को पास कर रहा है, बी ए को यहाँ पे पास कर रहा है, ये यहाँ पे बी ए को कर रहा है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे को इस पॉइंट पे स्ट्रेस करना है, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज a ball is gently dropped from a height of 20 meters if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second, right? Per second square. With what velocity will it strike the ground? At around what time will it strike the ground? So we are given u will be said to be 0. Yes. h is h, जिसे हम s बनाएंगे, that is equal to 20 meters. a is given 10 meter per second square. अब मैं b का क्या लिखना है, right? तो b का b square given नहीं है ना, नहीं given है। हाँ। So this is equal to 20 that become to be 20 meter, 20 yes, it is 20 meter per second. तो ये 20 divided by 10. Yes, ma'am. अब मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, उसको फिनिश करना, डाउट लगेगा तो मुझे बता देना। एंड नेक्स्ट इस सेल चैप्टर को एक बार बताना, ठीक है। अभी ग्राफ दिया होगा,
वो न्यूमेरिकल्स को भेजोगे मैसेज? करना जैसे होगा फिर मैं भेज दूंगी आपको, है ना? अभी तो नहीं कर पाऊंगी, राइट?